Hi guys, hope all of you are doing great. And guess what? We are going to do Sprint X for class 9th. Yes guys, we are going to do Sprint for class 9 and today we are going to cover the chapter that is Why Do We Fall Ill? Yes guys, very interesting chapter. And yes, very interesting chapter. We have completed the entire chapter also. If you want to do it in detail, you go and watch it guys. It's an amazing session है ना. It's an amazing chapter and it has lots of weightage, and in the time of corona we should definitely learn about it. Yes guys, yes, what are we going to learn today? Yes, we will be discussing what are diseases, causes of diseases है ना, types of diseases and prevention of diseases. These are the questions which we are going to do mainly. Yes, I will give homework also. This is our physics ka schedule and this is chemistry ka schedule. This is mathematics schedule. Oh my god, सबसे ज़्यादा the biggest schedule is of biology. If you can see, सबसे ज़्यादा biology का बड़ा सा schedule है. तो yes, then there is this SST का schedule. ये सबसे छोटा है. English का तो और भी ज़्यादा छोटा schedule है guys. You do watch all these and they are amazing. And yes guys, how many of you have not subscribed to the channel yet? Yes guys, we keep bringing you amazing sessions and amazing concepts. You know, please do follow. Not only one subject, we cover each and every subject which is there in the school. Yes, work smart, not hard. Okay, you should work very smart. Now people are like, sir, smart work क्या होता है? But a smart work is like understanding the डिमांड ऑफ द पेपर. मतलब आपके एग्जाम में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, उस चीजों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए और जो लेस इंपॉर्टेंट होती है उसको बाद में पढ़ना चाहिए. दैट इज कॉल्ड अ स्मार्ट वर्क. इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर बुक टुवर्ड्स द एंड व्हाट यू शुड डू, यू शुड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस. दैट इज व्हाट इज स्मार्ट वर्क गाइस. ठीक है, तो ऑन दिस नोट moving forward, so let's begin guys. The first question, okay, the first question which is for 1 mark, you get 1 minute but sprint time is 30 seconds. So let's try this question. Name the internal parasite that causes disease in animals. कोई दो इंटरनल पैरासाइट बता दो. ये तो बहुत ही इजी सवाल है सर, है ना. यस, कोई भी पैरासाइट बता दो. यस, यू कैन से एनी बैक्टीरिया, यू कैन से एनी वर्म, और यू नो मलेरिया का भी बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो. ठीक है, तो हियर इज गाइस वेस वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई जो कि एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस करता है, या एंटामीबा हिस्टोलिका जो कि अमीबायासिस करता है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है, एस्कैरिस यस गाइस जो कि एस्कैरियासिस करता है. एस्कैरियासिस क्या होता है? पेट में जो कीड़े जो छोटे वर्म्स होते हैं, दैट इज एस्कैरियासिस. मलेरिया तो हमें पता ही है. अमीबायासिस क्या होता है बेटा? यू नो लूज मोशंस हो जाते हैं स्टमक में किसी. वुचरेरिया क्या होता है? एलिफेंट लेग हो जाता है. ठीक है, द लेग्स गेट स्वोलन. दैट इज दिस वन, है ना बेटा. तो वेरी गुड क्वेश्चन. देखो पूछा 2 था, हमने 4 दिया है. यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम, यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन again you get, yes guys, 1 mark of 1 minute and 30 seconds में we will try to do this. Question is BCG vaccine is used to curb. BCG वैक्सीन किस चीज के लिए यूज होता है? निमोनिया के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, पोलियो के लिए और अमीबायासिस. अरे यार गिर गया. Yes guys, what is this used for? Tell me, what is this BCG vaccine used for? Very easy guys, exactly tuberculosis. BCG is Bacillus calmette-guerin. क्या है? BCG is Bacillus calmette-guerin, है ना. It is used for treating tuberculosis. Vaccine for tuberculosis. ये tuberculosis again protection देता है हमें, है ना. Very good. Again, yes guys, a 1 mark question, 1 minute, but you will get 30 seconds in our sprint. है ना. व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू कौन करता है? यस गाइस, इट्स अ वायरल डिसीज. डेफिनेटली जहां भी फ्लू होता है वो वायरल डिसीज होती है ना बेटा. H1N1 फ्लू भी कहते हैं. स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय H1N1 वायरस, है ना बेटा. और H3N2 वायरस भी करता है. ठीक है, अब मैं यहां पे आपको एक होमवर्क दूंगा. ठीक है, H1N1 तो हो गया. अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कोविड और कोरोना. कोरोना इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस. नेम द वायरस. नेम द वायरस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कोरोना, है ना. बहुत ही अमेजिंग है, अभी चल रहा है तो हमें पता होना चाहिए, है ना बेटा. तो एग्जैक्टली उसका नाम क्या है? ठीक है, तो वो बताना, क्योंकि देखो स्वाइन फ्लू थोड़ा पुराना हो गया बट दिस इज वेरी न्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन करता है. ठीक है, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, मुझे बताना है. ठीक है, मैं चेक करूंगा. नेक्स्ट वन, गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ
कम्युनिकेबल डिसीज, पहले मुझे बताओ यार कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है, कौन बताएगा सर कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है? यस, हु विल टेल मी व्हाट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? Yes guys, communicable disease is a disease which can spread. It can spread from one individual to other. It can spread from one individual to other individual. एक से दूसरे में spread हो सकता है, जैसे कि खांस दिया तो आप हो गया, है ना? कोरोना it's a communicable disease, है ना बेटा? और अब आप कुछ ऐसी डिसीज पे जो कम्युनिकेट नहीं होती, दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, है ना बेटा, लाइक डायबिटीज, कैंसर एक्सेट्रा। चलो कम्युनिकेबल डिसीज हम सबसे पहले कोरोना ही है सर, कोरोना है, ट्यूबरक्लोसिस है ना बेटा, वो एक दूसरे से फैल जाती है। फ्लू है ना, कॉमन फ्लू है, राइट, कॉलेरा है, वो भी फैल सकता है। यस, इन्फ्लुएंजा, मम्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, ऑल दीज आर कम्युनिकेबल डिसीजेस। नेक्स्ट वन, व्हाट आर अक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज, गिव एग्जाम्पल ऑफ बोथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, दिस विल डेफिनेटली कम इन द एग्जाम। इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, वी विल डू इट इन 1 मिनट। एग्जाम में यू गेट 2 to 3 मिनट्स, अभी हम इसको 1 मिनट में करेंगे। बताओ अक्यूट डिसीज क्या होता है बेटा? अक्यूट डिसीज वो होते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं एंड देयर इंपैक्ट इज लेस एज कंपेयर टू द क्रॉनिक। क्रॉनिक डिसीज मतलब विच टेक्स टाइम टू डेवलप, वो स्लोली डेवलप होता है और बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होता है हमारी बॉडी के लिए। अक्यूट मतलब छोटू मोटू सा डिसीज, क्रॉनिक मतलब बड़ा सा डिसीज, ठीक है? तो दैट्स द डिफरेंस, है ना? लेट अस अंडरस्टैंड, अक्यूट कंडीशंस आर सीवियर एंड सडन ऑन ऑनसेट, मतलब बहुत ही सडन होता है और बहुत ही जल्दी होता है और सीवियर भी हो सकता है कई बार, ठीक है? कॉमन फ्लू, निमोनिया, है ना, लाइक, बट इट इज लेस डेंजरस एज कंपेयर टू क्रॉनिक डिसीज। यस, there is a long development, it is developing slowly and it damages the body in a bigger way. Yes, osteoporosis मतलब बोन में होल्स हो जाना, राइट? अल्जाइमर, कैंसर, डायबिटीज, है ना? अल्जाइमर मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम होना, कैंसर हो जाना, डायबिटीज, these are the diseases which develop very slowly and takes a huge toll on the body, whereas acute condition which have there for a short period of time, और उनका जो spread होता है वो बहुत ही limited होता है, ठीक है? which is more dangerous, chronic diseases are more dangerous. Acute diseases can also be dangerous but they stay for a very shorter period of time as compared to the chronic. Yes guys, very good question. Yes, now always whenever you are writing guys these things, please do write examples. Always write examples, जब भी आप हो examples जरूर लिखना जब भी आप you are answering these type of question. Difference between, always write examples, ठीक है? Very good. Next one guys, do you know about Vedantu Pro subscription? Yes, do you guys know about Vedantu Pro subscription? Yes guys, here you get access to unlimited live classes from all the master teachers, ठीक है? और क्या होता है? हाई लेवल ऑफ क्विजेस, आप क्विजेस कर सकते हो, देन यू गेट टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जनरली क्या होता है, हम अपने स्कूल से बाहर नहीं देखते, बट ऑन वेदांत यू गेट टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑल्सो वर्ल्ड ऑल्सो, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपोजर प्लेटफॉर्म। यस गाइज, यू गेट टू इंटरैक्टिव रिप्ले, मतलब आप वापस देख सकते हो। कोई भी अपनी क्लास मिस होगी, मान लो आज आपकी तबीयत खराब है, यू आर नॉट एबल टू अटेंड, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट लॉग इन एंड वॉच द रिप्ले। यस, लाइव क्विजेस एंड लीडर बोर्ड। आपको मेंटी पसंद है, आई होप सबको मेंटी पसंद है। तो गाइस हमारे सेशंस में रोज मेंटी होता है और रोज एक टॉपर होता है। इट्स अमेजिंग सेशन, अमेजिंग फीचर जो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। इसके प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट विद हैंड रिटन नोट्स, मतलब आप क्लिक करोगे और आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। मतलब आपको क्लिक करना है और एंड यू विल गेट द एंटायर नोट्स ऑफ ऑल द टीचर्स, जो भी उन्होंने लिख के पढ़ाया है, आपको वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। देन व्हाट एल्स, इन क्लास डाउट सॉल्विंग टेस्ट एंड असाइनमेंट, मतलब आपको क्लास में डाउट हो रहा है तो गाइस along with me there will be many teachers who will be specially there to solve your doubts. Isn't it amazing? Yes, and you get to access, oh my god, yes guys, tests and assignment. टेस्ट असाइनमेंट से क्या होता है, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि कितना मेरे को आता है, कितना मेरे को नहीं आता, है ना? बिकॉज गाइस टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी ट्यूशन जाते हो, आपके ट्यूशन में भी टेस्ट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट,
माइक्रो कोर्सेज एंड फ्री क्रैश कोर्स। अब सर माइक्रो कोर्सेज, बेटा माइक्रो कोर्सेज मतलब वो वाले कोर्स जिसमें आपको बस एक चैप्टर पढ़ना है, आप वो वाला चैप्टर जाके कर सकते हो, है ना। इफ यू वांट टू स्टडी ओनली वन चैप्टर यू कैन गो एंड रीड दैट, इट्स अमेजिंग, है ना। एंड फ्री क्रैश कोर्सेज टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, हम सारा का सारा चैप्टर बहुत ही जल्दी से रिवाइज करवाते हैं, तो दैट इज कमिंग अंडर फ्री क्रैश कोर्सेज। Then you get more classes at a very less price. You get more classes at a very less price. And yes guys, you can use this code to get extra discount on the entire courses. 20% discount generally होता है. Yes, you can take up a course till March, this guys for 7200, और आप एक महीने का ले सकते हो for 2100. It's so amazing guys. It comes out to be at 12 rupees per month. If you are आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, तो गाइज यू कैन गो फॉर दिस कोर्स. दिस इज डेफिनेटली गोना बूस्ट योर स्कोर बाय 10 to 15%. यस, चलो आगे चलते हैं इसी बात पे. गाइज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. स्टेट द 3 ways in which disease can spread along with an example. सोचो और पहले अपने नोट पे लिखो. ओके, डू लेट मी नो. आप लिखो पहले 2 मिनट सोचो. यस, और एल्स पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. आई विल एक्सप्लेन. व्हाट आर 3 ways गाइज? एक तो होता है एयर से स्प्रेड हो सकता है ना, एयर से, और फिजिकल कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ मदर टू अ चाइल्ड, it can also spread, yes guys, air, physical contact, mother to a child, or it can also spread by guys, yes, contaminated food, contaminated food से spread हो सकता है. Yes, किसी वेक्टर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है. It can spread through a vector. Yes guys, yeah, so these are the things. Let us see. Direct contact, common method of spread, example bacteria, virus, जैसे कि हमारा अभी कोरोना चल रहा है. Yes, then we have mother to a baby, AIDS, hepatitis. ये क्या है guys? ये mother to baby spread हो सकते हैं. Yes, है ना. हेपेटाइटिस सी ब्लड से स्प्रेड होता है. HIV ब्लड, सीमन और वेजाइनल फ्लूइड से स्प्रेड होता है. सीमन क्या होता है बेटा? इट्स अ फ्लूइड विच कंटेन्स मेल स्पर्म. फूड से, है ना बेटा, कॉलेरा, बोटुलिज्म, ये सब किससे होते हैं गाइस? फूड से स्प्रेड होता है. फूड मतलब देखो गाइस, आपको देखना पड़ेगा. जैसे कि मान लो जो चीज नाक से एंटर कर रही है, एयर से एंटर कर रही है, वो मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगी. जो मेरे माउथ से एंटर कर रही है वो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगी. समझ पा रहे हो, है ना. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो चीज कहां से आ रही है और कहां जा रही है. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस, है ना. वेरी गुड, है ना. वेक्टर वाला मैंने बताया था, मलेरिया इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, जो वेक्टर से स्प्रेड होता है ना, और किसी ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होता है. रेबीज डॉग से स्प्रेड होता है ना. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ diseases which can spread. Yes guys, you can definitely do it in 1 minute, and it's a 2 marker. You have to write all these points. State the condition responsible for spread of malaria and measures to prevent and control it. Yes guys, it's a 2 marker, 2 to 3 minutes मिलते हैं आपको. You have to solve it in 1 minute. State the condition responsible for spread of malaria and measures to prevent it. बताओ मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है? Yes guys, malaria spreads by, yes guys, by a vector, that is female Anopheles mosquito. Yes guys, malaria spread by a vector, that is female Anopheles mosquito, है ना. How we can prevent it? We can prevent it by destroying the breeding sites of this mosquito. मस्कीटो क्या करता है? जहां पे भी पानी होता है, wherever water is there, it lays its egg. ये अपने एग्स वगैरह छोड़ता है जहां पे भी पानी होता है, एंड दे डेवलप. तो हमें क्या करना चाहिए? टायर के अंदर, कूलर के अंदर, जहां पे भी पानी होता है, वी शुड कीप इट क्लीन, वी शुड रिमूव द वाटर और पुट सम पेस्टिसाइड ओवर देयर, सो दैट वी डू नॉट अलाउ द साइट्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ मस्कीटो, है ना बेटा. वेरी गुड. मलेरिया इज अ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में होता है ना. ट्रॉपिकल एरियाज क्या होता है बेटा? देखो मैं बताता हूं आपको. देखो, ये अर्थ है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना बेटा. ये जो रीजन होता है बीच में, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन. यहां पे मस्कीटो ग्रो क्यों करता है? क्योंकि बेटा यहां पे जो सनलाइट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है. सनलाइट एंड वाटर अवेलेबिलिटी आर इज गुड. तो मस्कीटो के लिए बहुत ही फेवरेट प्लेस है ट्रॉपिकल रीजन. इंडिया बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन, जैसे कि आपका कुल्लू मनाली जाते हो आप, या गोवा वगैरह जाते हो, है ना. उसी तरह मस्कीटो का फेवरेट स्पॉट है ये
ट्रॉपिकल रीजन, क्यों? यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होता है ना, सब चीज़ अच्छी होती है। तो यस, तो दैट इज वाई ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ये इनको बहुत पसंद है ना। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, है ना, वेक्टर है, वो उसको स्प्रेड करता है। जैसे मस्कीटो काटता है वो मलेरिया के जो ऑर्गेनिज्म है उसको अंदर छोड़ देता है, प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में ड्रॉप कर देता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप फ्लाइट लेके जाते हो ना, उसी तरह जो मलेरिया का कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम है वो मस्कीटो को हायर करता है, मस्कीटो को बोलता है मुझे जाके इस आदमी के अंदर छोड़ के आओ, तो ये मस्कीटो की टिकट लेता है और वो छोड़ के आता है, ठीक है। यस, द पैरासाइट मल्टीप्लाई इन द लिवर, वो हमारी बॉडी में आने के बाद क्या करता है बेटा, लिवर में मल्टीप्लाई करता है ना। सीधा कहां जाता है, बॉडी में आने के बाद पहले लिवर पे जाता है, फिर लिवर से वो आरबीसी में जाता है, फिर आरबीसी से फिर से वो मस्कीटो के अंदर जाता है ना बेटा। यस, तो यस, व्हाट आर द मेजर्स वी कैन टेक टू प्रिवेंट इट? Yes. So guys, it's again 2 to 3 mark now, but what are the measures we can take to prevent it and control it? Yes guys, what we can do, we need to destroy the breeding places of vector. Yes guys, what we need to do, we need to destroy जहां पे भी मस्कीटो ब्रीड कर सकता है, अपनी फैमिली बढ़ा सकते, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा नंबर में बढ़े ना, सो दैट दे डू नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। Yes, that's why it is very, very important. Yes, very good. Another question guys, this is a 3 marker, 3 to 5 minutes you get. Explain the action of antibiotic penicillin in disease prevention. बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताओ मुझे, इसको पॉज करो और राइट इट ऑन योर ओन एंड आई विल आंसर दिस। यस, पॉज इट, आई विल टेल यू व्हाट इज एंटीबायोटिक। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज एंटीबायोटिक। But antibiotic is anything which is produced by a living organism which creates, which destroys the other living organism. देखो दो चीज होती है, होती है एंटीबायोटिक, होती है एंटीबॉडी। देखो कंफ्यूज नहीं करना, एंटीबायोटिक क्या होती है? इट इज अ सब्सटेंस which is produced by a living organism which kills other living organism. एंटीबायोटिक क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी चीज बनाता है जो कि दूसरे को किल कर देती है, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डिसीज। फॉर एग्जांपल, मेरी बॉडी में मेरे WBC एंटीबॉडी बनाते हैं ताकि वो मेरे को डिसीज से प्रोटेक्ट कर पाए। मतलब अगर मान लो कि कोरोना आ रहा है मेरी बॉडी में, तो मेरे बॉडी के एंटीबॉडीज इसकी पिटाई करके भगा देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होता है बेटा? जैसे कि मान लो एक बैक्टीरिया है, एक फंगाई है ना। फंगाई एक ऐसी चीज बनाता है जिससे ये बैक्टीरिया मर जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मान लो ये बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गया, तो मैं कहूंगा मैं बैक्टीरिया से वो चीज ले लूंगा और मैं खा लूंगा ताकि ये वाला बैक्टीरिया जो मेरे अंदर आ गया वो मर गया। समझ पा रहे? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको डॉक्टर क्या देता है? डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। डॉक्टर बोलता है कि आपके अंदर ये वाला बैक्टीरिया आ गया, आप ऐसा करो, मैं फंगाई से चीज लेके आया हूं, इसको आप खा लो तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा। समझ गए? तो ये एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच किल्स द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं। पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगाई। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक जो फंगाई बनाता है जो कि बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इन डिसीज प्रिवेंशन। अब ये एंटीबायोटिक ऐसा करता क्या है? बट जो पेनिसिलिन होता है ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होता है ना, ये मान लो ये बैक्टीरिया हमारा, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये पेनिसिलिन क्या करता है? इट डिस्ट्रॉयज द सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया, और बिना सेल वॉल के द बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव, तो वो मर जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, स्टॉप्स बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, है ना। इट प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग वॉल्स विच सराउंड इट। वो बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है एक वॉल बनाने से, है ना। यस, बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ सेल वॉल, वो अपने सेल वॉल के बिना सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। द वॉल्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड टू कीप द कंटेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेल वॉल उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि वो सही से रह पाए, ठीक है। तो वेरी गुड, दिस इज हाउ यू विल राइट। One more question, 3 marker, again 3 to 5 minutes, we will do it in 2 minutes. चलो, a person suffering from chest pain, chest में बहुत दर्द है बच्चे के, loss of body weight, persistent cough and produces blood stained sputum. Name the disease
एंड द कॉजेटिव एजेंट। डिसीज क्या होगा गाइस? ये तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है ना बेटा? ट्यूबरक्लोसिस। causative agent is guys, causative agent is mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis is the causative agent. Next one, mention the means of its transmission. कैसे? Through air. It can spread through air droplets, है ना? Yes, inhaling infected droplets leads by the coughing, sneezing and talking to an infected person. ठीक है? तभी वो कहता है कि जब भी आप खांसो वगैरह you should cover your mouth, है ना बेटा? Oopsie, next one. Name the vaccine used to prevent. ये याद है सबसे पहला क्वेश्चन हमने करा था. What's the vaccine used here? Yes guys, the vaccine uses BCG, Bacillus calmette-guerin is used for TB protection. है ना? Very good. Next one guys, it's a 5 marker. Generally 10 minutes मिलते हैं. We will try to do it in 3 minutes. ठीक है? Let's see. Differentiate between acute and chronic disease. ये हमने पहले कर लिया था. What's the difference between acute and chronic guys? It stays for a shorter period of time. है ना? Less damage on the body. Chronic grows slowly and causes bigger damage on the body. Congenital and acquired. Congenital मतलब बेटा this is present since birth. मतलब there are some diseases which are present since birth. मतलब birth से जैसे आप born हो तब से this disease is present in the body. That is, you know, congenital. Acquired मतलब which you gain during your lifetime. For example, मैं कहीं घूमने गया, मैं खाना वाना खाने गया, है ना, और वहां पे कोरोना हो गया, तो दैट इज अक्वायर्ड. मैं जाकर उसको लेके आया हूं, अक्वायर करके आया हूं. ठीक है? दैट इज, यू नो, यू कैन मेक इट फ्रॉम द नेम. इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस मतलब विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. यू कैन से कम्युनिकेबल टाइप. नॉन इन्फेक्शियस मतलब विच डू नॉट स्प्रेड. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, डायबिटीज, कैंसर, ये जल्दी फैलते नहीं है. यस. So guys, if you knew this answer, hit the subscribe button to the channel, है ना? सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक द वीडियो if you knew this answer, है ना? चलो आगे देखते हैं. This is a written answer. Acute disease refers to the medical condition that occurs suddenly and lasts for a shorter period of time. Chronic develops slowly and for a longer time. But guys, always write example. आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे. जैसे कि हमने फर्स्ट में लिखा था ना, acute flu हो गया, है ना? Corona is also an acute disease, we can say. Chronic disease like diabetes, cancer. Congenital disorder that is present before birth. ठीक है? Example, you know, example आप लिख सकते हो हेमोफीलिया. हेमोफीलिया बेटा ये ब्लड का डिसऑर्डर होता है. ठीक है? Acquired अगेन कोरोना लिख सकते हो, टीबी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. Infectious disease अगेन कोरोना, है ना? ट्यूबरक्लोसिस. कोरोना आपका फेवरेट है? हाँ, मेरा आजकल फेवरेट हो रखा है कोरोना. नॉन कम्युनिकेबल अगेन गाइस, डायबिटीज, है ना, कैंसर एक्सेट्रा. तो दीज आर द डिसीजेस व्हिच यू कैन राइट, है ना? वेरी गुड गाइस. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स देयर आर फ्यू क्वेश्चन व्हिच आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. वैक्सीनेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वैक्सीनेशन क्या है बताना पड़ेगा. ठीक है? व्हाट इज वैक्सीनेशन, क्या होता है बताओ, टेल मी. And who's father of vaccination? You should tell me father of vaccination in the comment box. आप मुझे बताओ वैक्सीनेशन क्या होता है. मैं आपको बताता हूं बेटा. वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी. व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड. हम क्या करते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके इंसान की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोरोना वैक्सीन हमने कैसे बनाई? कोरोना का हमने सैंपल लिया, उसको मारा पीटा, उसको वीक बनाया, फिर हमने उसको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा. क्यों? इससे क्या होता है सर? बेटा इससे होता क्या है, जब हम वैक्सीन देते हैं तो हमारी WBC एक्टिवेट हो जाती है. जब हमारी WBC एक्टिवेट हो जाती है तो ये करती है, ये जब एक्चुअल अटैक होता है, अब इसकी जब पिटाई कर देगी ये वीक, फिर जब एक्चुअल में अटैक होता है तो हमारी WBC ready होती है to fight with it. WBC is like what? It is like our, yes, army of the body. WBC क्या होता है? It is like the army of a body which protects us from disease. ठीक है? तो जब हम वैक्सीन देते हैं ना, तब हम हमारी आर्मी को अलर्ट कर देते हैं कि भैया देखो there can be a possible attack. तो हमारी आर्मी रेडी हो जाती है कि हाँ यार अटैक हो सकता है. समझे? तो that is what is the function of a vaccine. What's a vaccine? We put us weakened pathogen into the body which activates our immune system, which in case of an actual attack protects our body from this thing. बेटा हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है ना, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है
वी से इट हैज अ मेमोरी, इसको क्या होती है, मेमोरी होती है। सर अच्छा, इम्यून सिस्टम की मेमोरी होती है। बेटा मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम मतलब फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा चिकन पॉक्स, जिसको एक बार चिकन पॉक्स है उसको दोबारा नहीं होता। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? बेटा इसलिए होता है ऐसा क्योंकि जिसको चिकन पॉक्स हो गया होता है ना, उसकी बॉडी रिमेंबर्स कि चिकन पॉक्स किस वायरस की वजह से हुआ था, तो उसकी जो बॉडी का डब्ल्यू वो हमेशा रेडी रहता है उसको प्रोटेक्ट, मतलब उसकी पिटाई करने के लिए चिकन पॉक्स वाला अगर दोबारा आ गया तो। यस यस, आई गेस दिस इज क्लियर, है ना। तो ये होता है, ठीक है। तो इट इज इम्यून सिस्टम हैज अ मेमोरी, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन वैक्सीनेशन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ठीक है वैक्सीनेशन समझ आ गया, हमारी टीचर ने एक और शब्द बताया था, माई टीचर वॉज टेलिंग वन मोर वर्ड दैट इज इम्यूनाइजेशन। Sir, how is this different from vaccination? How many of you know what is immunization? बेटा देखो, वैक्सीन इम्यूनाइजेशन आर वन ऑफ द सेम थिंग। वैक्सीनेशन इज प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन इज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीन। मतलब मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए, मेरी जब इम्यूनिटी बढ़ जाती है उसको मैं कहता हूं इम्यूनाइजेशन। Immunization is a result of vaccine. Vaccine is process of introducing a vaccine. Immunization is the process when my immunity increases. Okay? तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज होती है, और थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, हाउ कैन यू प्रिवेंट डिसीजेस? हाउ कैन यू प्रिवेंट डिसीजेस? कैसे प्रिवेंट कर सकते? फॉर एग्जाम्पल कोरोना के केसेस में स्टे हाइजीनिक, वॉश योर हैंड, है ना, वॉश योर हैंड्स, ईट हेल्दी फूड, eat healthy food, do not eat from roadside, places where mosquitoes are roaming on the food, है ना। drink clean water, boil the water and drink, always carry a water bottle। guys, how many of you carry water bottle? जब भी स्कूल जाते हो वाटर बॉटल, कहीं से ही पानी मत पिया करो, you never know कि वो टैंक कब क्लीन हुआ होगा लास्ट, ठीक है। yes, do take clean water with yourself, है ना। keep your surroundings clean, keep your the surroundings must be clean, right, है ना। वहां पे मस्कीटो ब्रीडिंग प्लेसेस नहीं होनी चाहिए, मस्कीटोस वहां पे ना ग्रो कर पाए, उसको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड बी मेंटेनिंग। टाइप्स ऑफ डिसीज, व्हाट आर टाइप्स ऑफ डिसीज वी रेड? देयर कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, देयर कैन बी एक्वायर्ड डिसीज, देयर कैन बी कंजेनिटल डिसीज, है ना। डू लेट मी नो क्या है। देयर कैन बी अक्यूट डिसीज, देयर कैन बी क्रॉनिक डिसीजेस, है ना। देन causes of disease, what are the microorganism and what disease they cause? guys, थोड़े से बहुत ही important microorganisms होते हैं, उनका नाम आपको please you should definitely be knowing about them. there are some diseases which are very important, है जैसे कि tuberculosis हो गया, है ना, पोलियो हो गया, है ना, then cholera हो गया, टाइफाइड हो गया, HIV, ठीक है। HIV के बारे में हमने बात नहीं करी। HIV is what guys? HIV is also called as human immunovirus. It is also guys human immunovirus. बेटा HIV is a causative agent, डिसीज कॉज करता है। डिसीज कौन सी होती है? डिसीज इज एड्स। HIV is a virus which causes the disease AIDS. AIDS क्या होता है? Acquired immunodeficiency syndrome. What is it? Acquired immune deficiency syndrome. What is AIDS? It is acquired immunodeficiency syndrome. अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है, जो HIV वायरस होता है ना, वो मेरे WBC को हाईजैक कर लेता है। मेरे WBC को हाईजैक कर लेता है तो क्या होता है, मेरे जो WBC है वो कम हो जाते हैं मेरी बॉडी में। अब मेरी जब WBC कम हो जाती है तो क्या होता है, कोई भी ऐरा गैरा बैक्टीरिया के मेरे को किल कर सकता है। समझ रहे हो? इट इज लाइक यू आर रिमूविंग सोल्जर्स फ्रॉम द बॉर्डर्स। आपने अपने सोल्जर्स फ्रॉम द बॉर्डर्स कम कर दिया तो क्या होगा, देयर इज अ इजीली एनीवन कैन अटैक द कंट्री लाइक दैट। तो होता क्या है, पर्सन डज नॉट डाई बिकॉज ऑफ एड्स, रादर अ पर्सन डाइज बिकॉज ऑफ सम अदर डिसीज which could have been protected, just which could have been prevented in case that immune system was active। मतलब ये इसकी वजह से होता है कि जानो मान लो अगर मेरा इम्यून सिस्टम फंक्शनल होता तो अगर ये डिसीज होती तो माई बॉडी वुड हैव बीन एबल टू, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल। मतलब देखो जिन लोगों को एड्स होता है ना, दे डाई मेनली बिकॉज ऑफ टीबी। वो ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं,
क्योंकि उनका जो WBC होता है वो ट्यूबरक्लोसिस से फाइट नहीं कर पाता, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्यूबरक्लोसिस है वो उनकी उसको किल कर देती है। अगर एड्स नहीं होता तो बॉडी की WBC would have been able to fight with tuberculosis and the person would have been able to survive. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। HIV is the disease causing virus. It causes disease that is AIDS, है ना। एड्स क्या करता है, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल होता है ही कैन गेट इन्फेक्टेड एंड डाई बिकॉज ऑफ अदर डिसीजेस। एंड हाउ डज इट स्प्रेड? एड्स स्प्रेड बाय गाइस अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इट स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड transfusion, it spreads from mother to a child, it spreads from injections, infected needles, sexual interaction, blood transfusion, mother to a baby and injection जो drug लेते हैं what they do is they share drug को, जो needles लेते हैं ना वो एक दूसरे से share करते हैं अपनी needle, तो उसकी वजह से होता है। How can you prevent it? Same, preventing unprotected sex, preventing use of syringes, preventing ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड को चेक करो, जो भी ब्लड डोनेट करे उसके ब्लड को चेक करो बिफोर गिविंग इट टू समवन, है ना। मदर का भी HIV टेस्ट होना चाहिए सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द बेबी एटलीस्ट, राइट गाइस। दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू डू, है ना बेटा। वेरी गुड, तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं। एंड व्हाट्स द डिसीज? इस गाइस डिसीज इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ मतलब disease is a state of social, physical and mental well-being. It is not just absence of a disease. Staying healthy, what does healthy means? Physical, mental and social well-being. It is not just absence of a disease. Disease क्या होता है? Disease is some problem in the body, normal functioning, कोई organ हमारा सही से काम नहीं कर पा रहा, इसका मतलब हमें disease है। ठीक है, I hope you learned today guys. I did a quick revision, हमने पूरा रिवाइज ही कर लिया है चैप्टर। Do let me know in the comment box आपको सेशन कैसा लगा। And guys, we have done the tissues वाला chapter also, you can watch that. Today I completed this, and cell also, we have done the chapter on cell also. You can use this code to get extra 20% discount on various courses. And guys, don't forget to subscribe to the channel, like the video, and you can reach out to me at amrit.raj@vedantu.com. I'll be there to help you guys. Subscribe, like the video, share with your friends and subscribe, and keep smiling. I'll see you in the next session. Bye bye. Have a great day. Love you all. Bye.